Assalamu alaikum to all of you. My name is Jalil Ahmed, and I'm your law teacher at Qaid-e-Azam Law College, Nawab Shah. After so many deliberations, discussions, and so many times, so many weeks, finally we have been able to be here. This is my first session. I have created this virtual learning environment using Zoom application. And the topic of discussion for today is the criminal trial. The criminal trial and the general provisions regarding the criminal trial. Without wasting time, I would like to come on the point. As we have discussed earlier, Mr. Hans has shared his views with regard to criminal trial that after lodging an FIR, the investigation is carried out, and after the completion of investigation, police submit its report before the court, and if court takes the cognizance, they go for the trial. They frame the charge, and they go for the evidence. After leading the evidence, okay, we have Mohammad Khan Rind here today. I have admitted him. Basically, what happens? In the criminal administration justice system, we have Criminal Procedure Code. It's a procedural law, and we have Pakistan Penal Code as a substantive law. And we have got so many other special laws to deal with this crimes and offenses. In CRPC, Criminal Procedure Code, we have preventive measures. गुनाह या जुर्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे इख्तियारात दिए गए हैं पुलिस को, कोर्ट्स को, जजेस को, आम आदमी को। लेकिन अगर जुर्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट। FIR होती है, और FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर अगर कोर्ट समझती है कि ये सुनने जैसा जुर्म है, इसमें इतनी एविडेंस है, तो उसके ऊपर गवाही और एविडेंस चलता है। फिर एविडेंस को सामने रखते हुए कोर्ट अपना जजमेंट देती है। दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट व्यू। हम इस पिक्चर को और ज्यादा एक्सपेंड करते जाएंगे आज। This is the brief sketch of criminal procedure. When you become an advocate, you will go to the courts. You will have to deal with these issues. Let's say, for instance, being an advocate, आपके पास एक आदमी आता है with a criminal complaint कि जी मेरी चोरी हो गई है, डाका लग गया है, खून हो गया है, fraud हो गया है, whatever, कोई भी offense. What would you do? और वो किस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म चलेगा? तो छोटा सा स्केच है, इसको हम ब्रीफ ये डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसको एलाबोरेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और अ प्राइवेट कंपनी। अगर हम इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस अपनी तहकीकात करती है, and police during the investigation has to see whether the offense is cognizable or non-cognizable, whether it is a bailable or non-bailable. इसके बाद then we have the final report of the police, which is to be submitted by the investigation officer before the court, which is known as report under section 173 CRPC, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं या जिसको हम कहते हैं चालान। तो FIR होने के बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद वो पुलिस की रिपोर्ट जमा होगी कोर्ट में, और फिर ट्रायल स्टार्ट होगा कि आया जो इल्जाम मुल्जिम पर लगा है वो उसके ऊपर साबित होता है या नहीं, शवाहिद और गवाहियों की बुनियाद।
उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद एक डिसीजन आता है. दैट इज द ब्रीफ समरी. अब हम इसको वन बाय वन हम इसको एलाबोरेट करते जाएंगे. I need your feedback. Is it okay? Are you comfortable? Are you hearing my voice clearly? ज़्यादा जल्दी तो नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं है इसमें. No, sir, you are audible, and I think we are very much clear about your voice. Okay, and okay. If you find any problem in my language, so we can switch the languages also. तो हम उर्दू में बात कर सकते हैं या सिंधी में बात कर सकते हैं. Okay, sir. Okay. The basic purpose is to deliver the information. If you are hard enough, अगर थोड़ी सी भी मुश्किलात होती है तो आप मुझे you can convey it to me. We can switch the languages. The basic purpose is to deliver the knowledge and information what I have in my mind. तो उसको communicate करने में कोई भी अगर language का barrier हो तो you will be very free. आप बिल्कुल freely मुझसे बात कर सकते हैं कि जी आप language को हम switch कर लेंगे उसी time. सर दोनों को ही पार्टली चलाएं, इंग्लिश और उर्दू में दो. Okay, okay. ठीक है जी. We will be using both the languages. We will be using the code mixing. ठीक है. So let's start our lecture formally. When we talk about the criminal justice system in Pakistan, the criminal justice system has 4 stages. एक pre-investigation, दूसरा investigation, तीसरा pre-trial या trial, चौथा the judgment. Now, what happened? The FIR, which is the first information report, ये क्या करती है? ये FIR हो गई. What does an FIR do? क्या करती है? It sets law into motion. ये कानून को हरकत में लाती है. जब तक जुर्म का मालूमात नहीं दी जाएगी, तब तक कानून कैसे हरकत में आएगा? So to set the law into motion, to activate the criminal justice system, we need to lodge an FIR first. Being a complainant, you have to lodge an FIR. It sets the law into motion. After lodging this FIR, what happens? It follows the investigation. And after the completion of investigation, a report is to be submitted before the court. And after receiving the report, the court conducts an inquiry. वो inquiry करती है. Inquiry के बाद क्या करती है? Decides the disposal of a report. If it seems to be fit for a trial. FIR हुई, investigation हुई, report जमा हुई, अब कोर्ट ने इंक्वायरी की कि वाकई ये जो इल्जाम लगा है जिस मुल्जिम के ऊपर, उसके ऊपर इतनी एविडेंस है कि इसके ऊपर केस चलाया जाए. अगर वो एग्री करती है कोर्ट, तो द कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस. सो इनको 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं कि FIR के बाद प्री इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, प्री ट्रायल और फिर ट्रायल. Okay, if the court deems it fit for the trial or for the disposal in some other manner, the court commences the trial after framing of a charge. I don't know what are the time limits of this session, but I have got an alarm that the time is running short. Okay, if it is cut down, yes, sir, because we can conduct a 40 minutes meeting on Zoom app, then we have to reconnect. Okay, we will be reconnecting this, inshallah. जैसे ये disconnect हो जाए तो Mr. Hans, आप मुझे बताइएगा तो we will be reconnecting this meeting. Because it's a very long lecture today. इसके बाद हमने admin law को भी discuss किया. If you are agreed and if you are interested. Okay, ji, we were discussing that once
FIR is lodged, investigation is completed, and report is submitted. And the court has taken the cognizance. Now the court will commence the trial. Now, what is the sign? How do we know that court is commencing the trial? Framing of charge. The court will frame the charge on the accused person that on such date, such incident has been taken place, such offense is committed, and you were involved in such offense as per the allegations leveled in the FIR. Whether you have committed this offense, if the accused says, no, I have not committed this offense, then the court will proceed with the trial. They will lead the evidence in order to either कि prosecution ने सही केस बनाया उसको सजा लगती है या जो जवाबदार ने कहा जी मैंने ये जुर्म नहीं किया तो वो बेगुनाह है. अगर वो प्लीड गिल्टी करता है हाँ जी ये मैंने किया है तो केस इज फिनिश्ड. The punishment is to be awarded. Now, upon the conclusion of this evidence and arguments from both the sides, then the judgment is announced on the decision. And the decision culminates into either acquittal or conviction. सजा होगी या छोड़ देंगे. अच्छा, FIR के अलावा FIR is lodged under section 154 CRPC. डायरेक्ट कंप्लेन भी फाइल हो सकती है बिफोर द कोर्ट. अगर पुलिस आपकी FIR नहीं करती तो यू विल गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ डायरेक्ट कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 CRPC. आई होप यू हैव गॉट ऑल द पेन एंड पेपर्स विद यू. आप ये नोट डाउन भी करते जाएंगे और ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. Besides, we can also make an application according to 22A and 22B CRPC. Yes, application under section 22A 6B CRPC is with regard to the lodging of an FIR, and it is to be filed before the Justice of Peace, ex officio Justice of Peace, for the direction. The court will direct the police station, the concerned police, to record the statement of the applicant, and if any cognizable offense is made out, then you are supposed to reduce into the writing. Okay, now let's go briefly regarding this criminal justice system and its objective. You know, what is the object of this criminal justice system? The object of this criminal justice system is to provide the protection. Protection देना है किसको? Citizens को, हम शहरियों को. To provide the protection to the citizens. अच्छा, citizens को किस किस्म की protection देगा? Life and property. To provide protection to the life and property of the citizens, and to ensure the order in the society. यदि कोई भी जुर्म ना हो अमन अमान के साथ साथ. So this is the basic aim. We can say this is the chief aim of the society, of the system, to ensure that the innocents are acquitted and the guilty are punished. कि मासूमों को छोड़ दिया जाए और जो गुनाहगार हैं, जो जराइम पेशा हैं, उनको सजा मिले. So the chief aim of this system is to penalize the guilty one and acquit the innocent one. But another chief object is कोई भी जुर्म unnoticed नहीं जाना चाहिए. No offense should go unchecked, and no offender should go unpunished. Now, crime and criminal law. In a normal civilized society, the citizens are expected to act in accordance with the norms and the law of the society. अब लॉ क्या है ये हमने पढ़ा है. It's a command of a sovereign which is backed by a sanction. अगर खुद मुख्तार इदारा हुक्म दे और हुक्म ना माने तो उसको हम कानून शिकनी का दर्जा देते हैं, और कोई भी रूल्स रेगुलेशन जिनकी वायलेशन हो तो उनको ऑफेंस में कन्वर्ट करेंगे. So these crimes may be defined as the violation of rules and regulations set by the state. अब elements कौन से होते हैं crime? What are the elements of a crime?
Normally we cannot held a person responsible कि ये इसने जुर्म किया है, ये इसका कसूर. In order to ascertain the criminal responsibility of a crime upon a person, we need to see mens rea and actus rea. Mens rea, MENSREA, and actus rea. ये आपने पढ़ा भी होगा law of tort. Now, what is the simplest definition of mens rea? It means the guilty mind. और actus rea, acting criminally. तो ये दो चीजें determine करती हैं. If we combine with these both, so we can establish a crime. And in Pakistan, we have adversarial system of justice in the courts. The courts are there to decide upon the accused being guilty or otherwise if an accused of alleged offense. कोर्ट का जो काम है वो ये देखेगी कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो गिल्टी है या मासूम है. अगर गिल्टी है तो सजा देगी, मासूम है तो छोड़ देगी. कोर्ट का ये काम नहीं है कि जो जुर्म हुआ है उसको हम पकड़ कर लाएं. This is not the duty of the court. So we have adversarial system. Under this system, the courts are only bound either to acquit or to penalize the accused in the light of the evidence. Court has nothing to do कि जी वो court judge बाहर जाएगा और उसको पकड़ कर लाएगा. This is the duty of the police, the investigating agency. Now, what is the age of criminal responsibility पाकिस्तान में? तो आप रेफर करें सेक्शन 82 of Pakistan Penal Code. The age of criminal responsibility is 7 years. No person, no child below the age of 7 years can be held criminally responsible in any offense. और वो क्यों नहीं होता ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है जी. This is your assignment. ये छोटे छोटे सवालात आप नोट भी करते जाएं और मुझे बताइएगा at the end of this session कि why a child below the age of a 7 year is not held criminally responsible. ठीक है जी. सेक्शन 82 में क्लियर लिखा हुआ है पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड में, एंड 83 सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा 82 and 83, whereby it has been clearly written the child below the age of 7 years cannot be held responsible criminally, and child in between the age of 7 to 12 years can be capable of forming or possessing necessary mens rea unless it is established that he has not attained the maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct. 7 से 12 साल तक के लिए देखना पड़ेगा कि उसने मेंस रिया है कि अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, बट 7 से कम साल के लिए बिल्कुल नहीं. कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. जब हम बात करते हैं किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो हमारे पास पाकिस्तान में इट इज डिवाइडेड इनटू दीज कंपोनेंट्स. नंबर 1 पुलिस जो एफआईआर रजिस्टर करेगी, तहकीकात करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट. देन प्रोसिक्यूशन वो उस केस को फॉलो करेगी, परसू करेगी फ्रॉम स्टेट साइड कि ये जो एफआईआर हुई है, तहकीकात हुई है, सही है और ये जो इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा है इसको सजा मिलनी चाहिए. द डिफेंस लॉयर्स. अब आप जब वकील बनेंगे, when you would become the advocates, either you would be from the prosecution side or you would be from the accused side, the defense side. Prosecution prove करेगी कि ये केस सही है, and the defense side he will appear on behalf of the accused and he will defend the case. The fourth component is the courts. The courts, the jury, उनका काम है कि prosecution के बनाए गए केस को देखे और डिफेंस लॉयर्स की तरफ से जो डेंट उसमें डाले गए हैं ये मुस्तरद किया जाता है ये इल्ज़ाम, तो कोर्ट एविडेंस की रोशनी में देखेगी कि ये सही है या गलत है प्रोसिक्यूशन साइड या डिफेंस लॉयर से. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ऑफ कोर्स हमारे पास जब आप विल गो टू द कोर्ट तो सबसे पहले इंशाल्लाह जब आप एनरोल हो जाएंगे you'll be going to the civil courts
तो क्रिमिनल कोर्ट्स की जो हमारी हायरार्की है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। आप ये सेक्शन 30 से लेके सीआरपीसी को जब आप रेफर करेंगे सेक्शन 30 ऑनवर्ड्स, तो आपको ये कोर्ट्स का जिक्र मिलेगा कि कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी तो वो कितनी सजा दे सकता है। सेक्शन 32 में आपको उसका मिलेगा डिटेल्स। मैजिस्ट्रेट के बाद वी हैव असिस्टेंट सेशंस जज, जिनको हम सिविल साइड की तरफ से सीनियर सिविल जज भी कहते हैं, उनको पोस्टिंग होती है असिस्टेंट सेशन जज। फिर एडिशनल सेशन जज आते हैं एंड सेशंस जज। और स्पेशल लॉ के तहत हमारे पास एंटी टेररिज्म कोर्ट में एटीसी के जज होते हैं, और फिर साइबर लॉ के हवाले से, एफआईए के हवाले से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एंटी करप्शन, नैब, ये बहुत सारी ट्रायल्स हैं, ये ट्रिब्यूनल्स भी हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं। बट जो बेसिक हायरार्की हमारी वो है मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन। सेंटेंसेस विच अ मैजिस्ट्रेट कैन पास, जो सबसे पहले हमारी बुनियादी कोर्ट होती है वो सेशन जज नहीं होता, वो हमारे पास होता है मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट। जो भी क्राइम होता है वो सबसे पहले इसी के पास रिपोर्ट होता है। जैसे ही पुलिस के पास एफआईआर होती है वो 24 घंटों के दौरान मैजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होती है। जैसे ही कोई आदमी पुलिस पकड़ती है तो वो 24 घंटों के दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। और मैजिस्ट्रेट अगर पुलिस की रिपोर्ट को सही समझता है तो केस मैजिस्ट्रेट चलाएगा। अगर वो सेशन ट्रायल है, वो खून का केस है, कत्ल का केस है, मैजिस्ट्रेट नहीं चला सकता, तो फिर वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा बिफोर सेशन जज। बट तो बेसिक हमारा कंपोनेंट है इसमें मैजिस्ट्रेट है। और मैजिस्ट्रेट जो है वो कितनी साल तक की सजा दे सकता है? अप टू 3 years, 3 साल तक। अगर कोई भी ऐसा जुर्म है जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है हमारे, तो 3 साल तक की सजा मैजिस्ट्रेट दे सकता है। और अगर इससे कोई बड़ा जुर्म है तो मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को लेकर सेशन जज की तरफ भेज देंगे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, we will go for criminal investigation once the FIR is lodged. अब ये हमने थोड़े ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, स्टेजेस पढ़ी है इसकी। Let's move towards this criminal investigation. Offense is committed, the police has got the information. Now the investigation officer will start the investigation. ये थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Criminal investigation is the name of collection of evidence in respect of the crime in question. Its main purpose is to ensure that no one is put on trial unless there is a good case against him. Now, the criminal investigation क्या है जी? It's the collection of evidence. Now, what does an investigation officer do? It collects the evidence. अब दो terms use होती है, एक इंक्वायरी और दूसरा इन्वेस्टिगेशन। नोट डाउन कर लें, दिस इज योर टास्क। एट द एंड ऑफ लेक्चर यू वुड बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब जो भी हमने स्टेप्स पढ़े इसको हम डिटेल में रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के साथ देखते जाते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, popularly known as FIR. It's a well-known technical description of the report under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1898, referred as CRPC, which gives first information of a cognizable offense. It is generally made by the complainant or someone on his behalf. जब भी कोई जुर्म होता है तो उसकी इत्तला देना हर आदमी के ऊपर फर्ज है, और वो इत्तला अगर रियासत को मिल जाती है तो रियासत खुद ही फरियादी बन जाती है उस केस में, या कोई प्राइवेट आदमी अगर देता है तो वो उसमें फरियादी तस्वर किया जाता है और FIR लॉन्च होती है उसकी मुद्दत में। तो ये सेक्शन 154 में दर्ज होती है, CRPC में लिखा हुआ है सेक्शन 154 that every complaint is to be reduced into writing. If the cognizable offense is made out, then the FIR is to be lodged. अब बात हो रही है cognizable offense. Now what is cognizable offense and what is non-cognizable offense? दो किस्म के offenses होते हैं, एक वो जिनमें हम बगैर वारंट के उसको पकड़ सकते हैं, और दूसरा वो जो जिनके लिए हमें वारंट जरूर होता है। अब आप ये मुझे बताएंगे
व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, 3 असाइनमेंट्स अभी तक मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है जी, ये आप नोट डाउन भी करते जाएं कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 साल से कम पर क्यों नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में क्या फ़र्क है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क है। अब जैसे हमने डिस्कस किया थी, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एफआईआर इज टू सेट द लॉ इनटू मोशन, क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, to obtain first-hand information about commission of any criminal activity and to record the same at earliest before the same is forgotten or is embellished, and to provide sound basis for carrying out investigation into right direction. The basic object of FIR is to set the law into motion. अगर कोई जुर्म हो गया है तो वो बताना चाहिए इससे पहले कि मजीद ताखीर हो जाए, because delay in lodging an FIR is fatal to the case. जितना ज्यादा देर होगी FIR लॉन्च करने में उतना ही ज्यादा नुकसान होगा फरियादी को जिसका नुकसान हुआ है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या अगर आपके पास कोई केस आता है जिसमें आप डिफेंस लॉयर हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे एफआईआर में कि जी डिले कितनी है, वाकया कब हुआ है और एफआईआर कब दर्ज हुई है, कि जी 4 दिन की डिले है, 5 दिन की है, 2 महीनों के बाद की एफआईआर है। तो बीइंग अ डिफेंस काउंसिल यू विल टेक द एडवांटेज एंड यू विल पुट द प्ली, यू विल सबमिट द प्ली कि जी दिस इज अ मैनेज्ड एफआईआर। ये डेलिब्रेशंस के बाद इन्होंने मेरा नाम लिया है जी, 2 महीने सोचने के बाद, 3 दिन सोचने के बाद, सलाह मशवरे के बाद, क्योंकि हमारी इससे पहले रिश्ते के ऊपर तकरार चल रही थी, क्योंकि ये वैसे ही हमारे साथ नहीं बनता था। So this is the reason that they have nominated my name in the FIR, because it's after due deliberation. So this is the basic objective कि जो भी FIR होगी वो जल्द ही लॉन्च होगी। जैसे लिखा ना, record the same at earliest before the same is forgotten, या तो कोई भूल जाए और embellished या वो धुंधली हो जाए, उसकी अहमियत खत्म हो जाए और डिफेंस काउंसिल को मौका मिल जाए। तो लॉजिंग एन एफआईआर एट द अर्लीस्ट स्टेज, बीइंग अ काउंसिल, बीइंग अ फ्यूचर एडवोकेट, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो यू विल सजेस्ट कीजिए एफआईआर जितना जल्दी हो सके लॉन्च करवा दें। हमारे पास जी आसरों में बैठा देते ना, बाबा तरस वडे रोहित हुआ वो पानी दिशा में कम गए भाई, आप बैठ जाए कि बैठे फैसला करते हैं, इसको प्राइवेटली देख लेते। तो क्या होता है, वो राइट उसका खत्म होता जाता है, डिले जो है वो केस को खत्म करती जाती है। जब वो 4 महीनों के बाद जाएगा जी एफआईआर कटवाने, तो ऑब्जेक्ट उसका फोर्थ हो जाएगा, पर्पस इज डाइड। एफआईआर हो जाएगी लेकिन इतना वो वेट कैरी नहीं करेगी। द सेम एफआईआर विल नॉट कैरी द वेट एंड डेफिनेटली द बेनिफिट विल गो टू द अक्यूज्ड साइड। Under section 154, the police is bound to register the FIR, and it is an statutory right conferred under section 156 subsection 1 to investigate into cognizable offense. अब cognizable offense में investigation होगी और non cognizable offense में investigation जो होगी वो with the consent of the court होगी। Investigation stage, FIR is lodged, cognizable offense is made out from the contents जो FIR उसने लिखवाई है, उससे जाहिर होता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह जुर्म हुआ है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए जी। मर्डर हो गया है, चोरी हो गई है, डाका हो गया है, जिना हो गया है, कोई भी ऑफेंस हुआ बड़ा है, कॉग्निजेबल। तो अब इन्वेस्टिगेशन, अब जैसे ही एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 172 CRPC, daily diaries are to be maintained by the investigation officer. अब डेली डायरीज क्यों? जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस की मद में थाने से बाहर जाएगा, जाए वारदात का मुआयना करने, फरियादी का बयान लेने, गवाहों का बयान लेने, मेडिकल के कोई सैंपल लेने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, तो वो जो भी जिस टाइम थाने से बाहर जाएगा फिर जिस टाइम वापस आएगा, टाइम टू टाइम एक एक चीज उसको मेंशन करनी है डायरीज में। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 172 CRPC। अब this 172 section CRPC requires every police officer to make an investigation and to
enter his day-to-day proceedings. पूरी जो दिन ब दिन में जो भी कार्रवाई हुई, जिस वक्त हुई, वो हर चीज की उसमें एंट्री करेगा और उस एंट्री में क्या लिखेगा? द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड, किस वक्त उसको इत्तला मिली, किस वक्त वो चीज, वो तहकीकात उसने शुरू की, कब निकला, कब वापस आया, कौन सी जगह उसने विजिट की और कौन कौन से स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड किए. एवरीथिंग इज टू बी मेंटेन इन दिस डेली डायरीज. रोजनामचा एंट्री कहते हैं इसको, रोजनामचा, जो रोज उसको एंट्री करनी होती है. Now, a criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or a trial before such court. Such diaries may help the court in the inquiry or trial, but such cannot be used in evidence. अब ये जो डायरीज होती हैं, इनमें से डिफेंस लॉयर्स क्या करते हैं? ग्रे एरियाज, वीक एरियाज फाइंड आउट करते हैं. ये जो वहाँ पे तारीख लिखी है 11 बजे में 22 तारीख को निकला था और ये मैंने स्टेटमेंट लिया था, लेकिन पता चला जी वो स्टेटमेंट जो है वो 2 दिन पहले ही लिया हुआ था. पता चला जी वो उस दिन तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी, वो तो ड्यूटी पे था इस्लामाबाद. तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं ये फाइंड आउट होती हैं और ये मैंडेटरी प्रोविजन है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए कि वो अपनी डायरीज को मेंटेन करे. The second is arrest of accused by police. For this, you should refer to the section 46. 46 onwards, जो भी sections हैं, these are with regard to the arrest of the accused by the police. How arrest is to be made. It is described, ये section 40 के बाद जो है, how arrest is to be made, 46, 47, 48. How arrest is to be made by a private person, how arrest to be made by a magistrate, how arrest is to be made in the presence of a magistrate, and after the arrest of a person, how the person is to be produced before the court. ये 46 onward CRPC आपको sections मिलेंगे. इसमें कि हमने judgment भी discuss की है, PLD 2014, Sindh, page number 501. Pakistan Law Digest. It is published in 2014. It is the judgment of the Sindh High Court and it is reported on page number 501. Case law कहते हैं इसको, citations ये आप पढ़ सकते हैं for your reference. Now, arrest by a private person, FIR is lodged, investigation is being conducted. Now, under what situation पुलिस को जी उनको इख्तियारात है कि जी वो पकड़ सकते हैं. Now, under what situation a private person can arrest? तो जी ये section 59 of CRPC है. Under this section, a private person may arrest any person who believes has committed a cognizable offense, non-bailable offense, or a proclaimed officer, proclaimed offender. अगर कोई आदमी इश्तिहारी मुजरिम है, कोई आदमी इश्तिहारी मुजरिम है, कोई आदमी ऐसा हीनियस क्राइम किया है, तो उसको आम आदमी भी पकड़ सकता है. Are you getting my voice? Yes, sir. Okay जी, thank you. अगर आपके लेक्चर कुछ समझ आ रहा है तो आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा. अगर आप बोर हो रहे हो तो हम इसको खत्म कर दें. जी बिल्कुल सर, हम चैट में भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर. ओके, जो भी आपके सवाल हैं आप चैट बॉक्स में पूछें, आई विल रिप्लाई देम अकॉर्डिंगली. Okay, the arrest by a private person under section 59, every private person is empowered to arrest a person who is fugitive from law. इश्तिहारी मुजरिम होते हैं ना जी, पता है ये दहशतगर्द है, इसका ऐलान है, वो आम आदमी को भी नजर आ जाए तो वो उसको पकड़ के पुलिस के सामने पेश कर सकता है. Under section 59 he is empowered. Now arrest by or in presence of a magistrate, these are the powers of a magistrate कि अगर उसके सामने जुर्म होता है वो भी अरेस्ट कर सकता है, और अगर उसके पता है कि ये आदमी है तो वो उसको अरेस्ट भी करवा सकता है और उसको वो छोड़ भी सकता है. अगर कोई पुलिस का आदमी ले आती है और मैजिस्ट्रेट का मानना है कि ये इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, ही इज इनोसेंट, तो मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 63 टू रिलीज द पर्सन. वो पता है हमारे पास होता है ना कि जी वो 2 हिकड़े कहवा किसी एक ने जुर्म कर दिया तो वो 10 आदमियों को अरेस्ट कर लेते. वो तुम्हारा भाई जो है वो इसमें he is nominated in the FIR and we are unable to find out, trace out your brother, so I am taking your sister, or I am taking your father, or I am taking your son. तो जी आप वो बदले में हम इनको ले जाते हैं
एंड जब वो आ जाए तो आप उसको जमा करा के उसको छुड़ा के ले जाइए. तो इट्स नॉट द केस. This would be treated as an illegal detention. So magistrate under section 63 is empowered to release the person, to set the person free if he feels like he is an innocent person and he is under illegal detention और इसको बंद करना है वो गैर कानूनी है, तो he is empowered under section 63. वो उसको छोड़ सकता है, वहां से रिहा कर सकता है. Now जब भी कोई आदमी अरेस्ट होगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की तरफ से, that person is to be produced before the magistrate under section 61, and that is also a constitutional right of a person, that every person who is detained or arrested by a police is to be produced before the concerned magistrate within 24 hours. 24 घंटों में प्रोड्यूस करना है जी, सेक्शन 61 भी कहता है और ये आईन पाकिस्तान भी कहता है. आर्टिकल 14 इज देयर. आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10A है. ये आप आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिएगा, 9, 10, 10A and 14. अब रिप्रेजेंटेशन बाय काउंसिल. Every person who is arrested must be given a right, must be given an opportunity to engage a counsel. एक वकील कर सकते हैं. आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये वाजे है. Then comes the police custody remand. After the lodging of FIR during the investigation, if somebody is arrested by the police, by the investigation officer, the police will produce the person before the concerned magistrate and they will ask for the remand. Now, what do we mean by remand? Means sending back a person. किसी आदमी को वापस पुलिस कस्टडी में देना ऑफिशियली, क्योंकि 24 घंटों में जिस आदमी को पकड़ा गया उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. अब मैजिस्ट्रेट को उन्होंने कहा कि जी रिमांड दे. इसका मतलब ये कि उस आदमी को वापस हमें दे दें ऑफिशियली, लीगली, कि हम तहकीकात को कंटिन्यू कर सकें. So formally we say remand denotes sending back a person into custody to secure investigation or a trial. अब जो रिमांड है वो 15 दिन तक का है. तो फर्स्ट रिमांड जो होगा वो 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, इस तरह चलता रहेगा. मैक्सिमम 15 दिन तक वो रिमांड दे सकते हैं. 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते. पुलिस हैज टू confine his investigation, complete his investigation within 15 days. उस मुल्जिम की बात जहाँ तक है कि जिसको कस्टडी में रखा है, तो 15 दिन तक आप उससे तहकीकात कर ले. स्पेशल लॉ में हमारे पास अभी रेंजर्स को इख्तियारात है 90 डेज के रिमांड के, और नैब वालों को इख्तियारात हैं. बट CRPC में हमारे पास जो रिमांड है वो 15 डेज. स्पेशल लॉ में इट कैन बी एक्सटेंडेड. अच्छा, कौन सी ऐसी सिचुएशन है व्हेन अक्यूज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड? अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि अक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? 24 घंटे में प्रोड्यूस करना है ना जी, अभी पढ़ा हमने. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें अक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. जैसे कि अगर कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हुई है, कोई आदमी इंजर्ड कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें आप रिमांड के दौरान उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल डिटेंशन. लेकिन जो अरेस्टेड है, जो अगर पुलिस की कस्टडी में है और वो हॉस्पिटल में, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उस पुलिस की जिम्मेदारी. रिमांड इन सेशन ट्रायल अंडर सेक्शन 344, वो सेशन ट्रायल का भी रिमांड यही देंगे मजिस्ट्रेट साहब. सक्सेसिव रिमांड यानी जो पहले 2 दिन का लिया, फिर 4 दिन का, फिर 6 दिन का, ये सक्सेसिव रिमांड इज द पावर ऑफ द पुलिस. एक चीज यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि सेक्शन 154 में FIR होती है, फिर 154 से लेके 173 तक ये इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन से CRPC, ये आप जहन में रखिएगा. और ये वो इख्तियारात हैं जो पुलिस को दिए गए हैं ताकि साफ शफाफ तहकीकात की जाए. अब इन इख्तियारात में पाकिस्तान की कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती. इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that they are not going to interfere in the investigation. ठीक है जी. अच्छा, रिमांड इन बेलेबल ऑफेंस, वो ऑफेंस जो बेलेबल हैं, माइनर ऑफेंस हैं, उनमें बेल यानी राइट है, तो उनको अक्यूज्ड कैन नॉट बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी इन बेलेबल ऑफेंसेस. अक्यूज्ड कोई मुल्जिम है, उनको रिमांड नहीं दिया जाएगा, उनको आप PR बॉन्ड पे छोड़ देंगे, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं है.
वो ऐसे ऑफेंसेस नहीं है कि जिनमें उनकी जमानत ना हो सके, वो ऐसे केसेस है जिनमें जमानत उनका हक है, तो उनको रिमांड नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ PR बॉन्ड पे हम उनको छोड़ देते। रिमांड ऑफ अ वुमन, यस, सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 CRPC में लिखा गया कि सिर्फ कत्ल और डाके के केस के अलावा अगर कोई औरत रिमांड के लिए आती है तो शी हैज टू बी सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। अगर कत्ल और डाका है तो फिर तो शी वुड बी गिवन द रिमांड, लेकिन सब्जेक्ट के वो उसके साथ लेडी पुलिस ऑफिसर होगी। लेकिन अगर उनके अलावा कोई भी केसेस ऐसे हैं, चीटिंग के, फ्रॉड के, किसी भी किस्म का, तो उसका जो रिमांड होगा, रिमांड नहीं होगा, शी वुड बी सेंट टू दी जुडिशियल कस्टडी, यानी जेल भेज दिया जाएगा। और पुलिस ऑफिसर को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो फर्दर उसको कहा जाएगा कि वो जाकर जेल में उनके साथ उसके स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करें। रिमांड ऑफ जुवेनाइल्स, बच्चे छोटे, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनका रिमांड कैसे होगा? उनका रिमांड होगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 of the Juvenile Justice System Ordinance of 2000. It provides that when a child under the age of 15 years is arrested, 15 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा अरेस्ट हो जाता है या डिटेन हो जाता है और जिसकी सजा 10 साल से कम है, तो वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे इसने बेलेबल ऑफेंस किया है, यानी आप उसको रिमांड नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर वो बेल उसको पुलिस नहीं देती, कोर्ट उसको बेल नहीं देती, तो फिर उसको जुडिशियल कस्टडी किया जाएगा। Now, what do we mean by judicial custody? If a magistrate, if the court thinks fit that this person is not further required by the investigation officer, इस आदमी की जरूरत नहीं है कि फर्दर इसको रिमांड दिया जाए या पुलिस वालों के पास रहे। एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगा है, उसने बेल भी नहीं करवाई, वो पुलिस वालों के पास 10 दिन 15 दिन तक मौजूद रहा है, तो अब अगर उसको कोर्ट क्या करेगी? The court will send that person to the judicial custody, jail भेज देगी। So precisely, what is judicial custody? If a magistrate thinks the case is not fit for the remanding accused to police custody, the accused is not to be discharged or released on bail, he shall send the accused to judicial custody and like to provided section 344 CRPC, jail भेज देगी under section 344. नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिट रिमांड। अगर कोई आदमी सफर में है तो उसका भी रिमांड दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ से हम गए दादू में से पकड़ के लाया, या हब गए बलूचिस्तान कोयटा में से पकड़ लिया बंदा, अब तो क्या होगा? वो ट्रांजिट रिमांड देंगे, तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट होंगे। खून हुआ है जी यहाँ पे नवाबशाह में, और जो बंदा है वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है, तो बलूचिस्तान से यहाँ पे तो 24 घंटे में वो नहीं आ सकते, बारिशें हो रही हैं, सैलाब हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 85 और 86 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ट्रांजिट रिमांड का प्रोविजन है कि जी वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश किया जाएगा, फिर वहाँ का वो ट्रांजिट सफरी रिमांड जिसको कहते हैं, सफरी राहदारी रिमांड देंगे कि जी यहाँ से ये लेके वहाँ तक पहुँचे, तो वो ऑर्डर भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट, वहाँ का जो इलाके का मैजिस्ट्रेट होगा वो करेगा। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 63 रेड विद सेक्शन 169 है ये, 167 एंड 169। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जी he is no more an accused, he is no more guilty person, he is an innocent person, he should be set free, then the magistrate has the power under section 63 to discharge a person. Clear है जी? Let's move towards search of documents. बंदे पकड़ लिए, FIR हो गई, तहकीकात में आदमी पकड़ लिया, उसका रिमांड हो गया। रिमांड होने के बाद अब तहकीकात है, उन्होंने बता दीजिएगा आला कत्ल जी वहाँ पे पड़ा हुआ, जो पिस्टल से खून किया था वो उस घर में है, कब्रिस्तान में है, लाश वहाँ है, जो चोरी किया था सामान, जो रजिस्ट्री, खाते, चेक बुक, वो वहाँ पर पड़े हुए। तो सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स आर हाउस, ये सेक्शन 94 एंड 96 में डील किया गया कि वो किस तरीके से सर्च होगी। बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन हैज गॉट द पावर्स टू सर्च द हाउस, टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स, टू लुक फॉर द एविडेंस, to collect the evidence. This is the name of investigation. Investigation का यही काम है. So a production of a certain document are things
which are necessary for the purpose of such investigation, inquiry, or trial, the officer in their case may issue a written order, or the court in their case may issue a summon subject to condition laid down in section 94. So section 94 से 96 तक investigation officers are empowered to search any document, to search any house, to search any place, and for this they need a written order. अच्छा, जो आदमी illegal confined है, now a magistrate is empowered also, जैसे हमने 63 में what we have discussed. Now if magistrate feels like that somebody is wrongfully confined and his or her confinement is subject to an offense, कोई आदमी आपसे बेजा में गलत तरीके से जेल, and if the person to whom such warrant is directed finds the wrongfully confined person for whom such warrant is intended, he shall immediately take the person to magistrate for appropriate orders. कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर किसी जेल में, किसी कंफाइनमेंट में, तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और मैजिस्ट्रेट हैज टू सेट हिम फ्री. Now recording of a statement by the police. Section 154 में FIR हुई, 160 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नोटिस इशू करते हैं कि जी जो उसके केस के जो FIR के जो वाक़े के हकीकी गवाह हैं, जिसको आई विटनेस कहते हैं, उनके बयानात लिए जाते हैं. तो 160 में he has to issue the notice and 161 में he has to record the statements of the witnesses. तो जो भी स्टेटमेंट होंगे अंडर सेक्शन 161 वो रिकॉर्ड करेगा, वो जाए वारदात का मुआयना हो, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट हो, डॉक्टर का स्टेटमेंट हो, फरियादी के हो, जो भी स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 161 वो रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम कहते हैं 161 या बयान, 161 के बयान. अब जो भी स्टेटमेंट विटनेसेस की, अब जो 161 है इट हैज गॉट नो एविडेंशियल वैल्यू, ये साइन नहीं होते. 161 के स्टेटमेंट जैसे FIR के ऊपर फरियादी के सिग्नेचर होते हैं, तो 161 के स्टेटमेंट्स के ऊपर किसी भी विटनेस के सिग्नेचर नहीं होते. द पुलिस need not to obtain any signature. अब ये जो सेक्शन 160 है, this is the power of the police. According to this section, the police officer is empowered to require attendance before himself or any person within the limits of his own adjoining police station. जिसको हालात और वाक़यात का पता हो, 160 का वो नोटिस देके कि SHO साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने आपको बुलाया कि आप आके वहाँ पे बयान दे दें. फिर वो 161 में is further empowered कि जी वो उसको एग्जामाइन करे, और अगर उसको फैक्ट्स का पता है, हालात का पता है, उस इवेंट का पता है, तो वो जो भी बातें हैं वो सारी लिखता जाए और वो जो स्टेटमेंट है एन एविडेंस को पेश करे. And these statements can be used for contradicting a witness for persons giving such a statement as indicated Article 140 of Qanun-e-Shahadat. अब ये तो हो गई स्टेटमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने. नाउ 164 में विटनेस अगर कहता है कि मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने गवाही देनी है, क्योंकि जो 161 की स्टेटमेंट है उसकी एविडेंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं जो स्टेटमेंट दूंगा वो मैजिस्ट्रेट के सामने दूंगा. तो अंडर सेक्शन 164 CRPC विटनेस अपनी एप्लीकेशन देगा मैजिस्ट्रेट के पास एंड मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस. लेकिन उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, CNIC लगेगी, कॉपी लगेगी, उससे पूछा जाएगा सवालनामा, प्रेशर है नहीं है, किसी दबाव में तो नहीं हो, पुलिस ने मारा तो नहीं है, हो सकता है वो कन्फेशन हो अक्यूज की साइड. यानी जो भी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने होगी अंडर सेक्शन 164 होगी, उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, इसलिए उसके पूरा एक फॉर्मल प्रोसीजर है 164 में दिया गया है, वो भी हम डिस्कस करते हैं आज. सर सवाल है सर. जी जी सर 161 के तहत अगर उसने पुलिस के पास उसने स्टेटमेंट जमा करवा दी पहले ही, ठीक है, देन वो आया कोर्ट में, तो अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन उसके लिए अलग देना पड़ेगा? जी जी अलग देना पड़ेगा, जी अलग देना पड़ेगा. अच्छा जी जी सही. ओके जी, आपके जो भी सवालात हैं जो SMS में, आई विल गेट बैक ऑल दीज आंसर्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस लेक्चर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन.
रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164। जैसे मैंने कहा कि अगर विटनेस स्टेटमेंट दे सकता है कि जी ये वाकई इसी आदमी ने मेरे भाई का खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वो जो कन्फेशन वाला आदमी, वो भी अगर आप कन्फेशन करना चाहे तो कर सकता है। हाँ जी, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैंने एक्सीडेंट किया था, मैं ड्राइवर था। इल्ज़ाम जो है ये खान साहब पर लगा था, खान साहब नहीं थे, खान साहब तो सोए हुए थे, मैं इसका ड्राइवर हूँ, गाड़ी में चला रहा था, मैंने आदमी को मारा है। इस किस्म का अगर कोई कन्फेशन है तो वो इट इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164। नाउ दिस इज नोन एज जुडिशियल कन्फेशन। जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान अगर कोई वो करता है एतराफ जुर्म, ठीक है जी, तो वो होगा जुडिशियल कन्फेशन। जो पुलिस वाले अपनी स्टेटमेंट में लिख के देंगे 161 में कि हाँ जी मैं मानता हूँ ये गुनाह मैंने किया, जुर्म मैंने किया, तो उसकी कोई एविडेंस में वैल्यू नहीं है, और उसको कन्फेशन बिफोर द पुलिस जो है वो इट हैज गॉट नो एविडेंशियल वैल्यू, बट द जुडिशियल कन्फेशन हैज द एविडेंशियल वैल्यू। A mood of formalities to be observed for recording judicial confession। जब भी कोई आदमी जुडिशियल कन्फेशन करेगा तो वो किस तरह होगा, उसके पूरा फॉर्मेलिटीज हैं कि जी अगर वो आदमी जेल में कस्टडी में है, पुलिस के पास है, वो मुलजिम जो है वो एतराफ़ जुर्म करने आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी हथकड़ियाँ खोली जाएंगी, उसको खड़ा किया जाएगा, उसके साथ पूछा जाएगा नरमी वाला मामला कि जी किसी ने सख्ती तो नहीं की, किसी ने दबाव तो नहीं दिया, किसी ने मारा पीटा तो नहीं है, और उससे उसका NIC लिया जाएगा, और लाजमी बात है कि उससे दस्तखत भी लिए जाएंगे उस बयान पर, अदरवाइज वो एक बहुत बड़ी इलीगलिटी होगी अगर वो नहीं ली जाती। तो सबसे पहले कस्टडी से उसको हटाया जाएगा, पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, हथकड़ी खोल दी जाएगी, और कोई भी पुलिस वाला वहाँ पे नहीं होगा, और उससे पूछा जाएगा किसने उसको मारा तो नहीं है, किसी ने उसको आपसे बेजामे तो नहीं रखा, किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया। ये सारे प्रोसीजर्स हैं। आई विल शेयर दिस विद यू दैट हाउ द कन्फेशन इज टू बी रिकॉर्डेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। और अगर इन प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी होती है, जैसे मैंने कहा कि ये दस्तखत नहीं लिए, तो ये नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 164 रीड विद 364 CRPC, तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो इलीगलिटी टर्म होती है, वो फिर आगे जाके अक्यूज को फायदा देती है और वो केस में आपके डेंट पड़ जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पे, ये तो FIR हुई, नॉमिनेटेड A ने कहा कि मेरे भाई को B और C ने मिलकर मारा, वो B और C को गिरफ्तार किया गया। C जो था मैजिस्ट्रेट ने समझा ये जी बेकसूर है, ये नॉमिनेटेड नहीं था, पुलिस इसको वैसे ही पकड़ के लाई है। सपोज A ने कहा कि जी B और C ने मुझे मिलकर मारा, पुलिस D को पकड़ लाई है, E को पकड़ लाई, किसी और आदमी को, मैजिस्ट्रेट ने समझा उसको डिस्चार्ज कर दिया 63 में, 2 आदमियों को लेकर आए, उन्होंने रिमांड दे दिया, एक रिमांड, दूसरा रिमांड, तीसरा रिमांड, उनके पॉइंटेशन पे भी आला कत्ल भी निकल आया, रिकवरी भी हो गई। लेकिन अगर FIR में लिखा है कि जी 2 आदमी को मैं पहचानता हूँ, 5 आदमी आए थे, 2 को पहचानता हूँ A और B, जो बाकी 3 है उनको मैं नहीं पहचानता, तो अंडर आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन परेड इज टू बी कंडक्टेड, आइडेंटिफाई कराया जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ उसूल हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, बिकॉज इन वाकयात में जब वाकया होता है कि एक ग्लिम्स देखा जाता है दूर से, I have seen that person, but although I have not identified them, but I can identify them in case they appear before me। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान लूंगा। 2 persons were identified, but 3 persons remain unidentified, but can be identified if seen again। आर्टिकल 22 कहता है कि जी अगर रीजनेबल कोई नया फैक्ट आता है, रेलेवेंट फैक्ट नया आता है, तो उसको आप करवा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगा, बट एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द विटनेस ऑफ द केस हैज आइडेंटिफाइड अ न्यू पर्सन हु वर द अनआइडेंटिफाइड इन द FIR। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसका भी एक तरीका है कि जिस आदमी को आइडेंटिफाई करवाने जा रहे हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, CCTV फुटेज की मदद से देखे, वो दाढ़ी वाला आदमी था, उसकी मूछें थी, छोटा कद था, बाल थोड़े लंबे थे। अब विटनेस को आइडेंटिफाई करवाना है तो पुलिस उस आदमी को पकड़ के उसी जैसे कम से कम 4 आदमी
या ज्यादा जितने भी हो सके, 10 आदमी जितने भी हो सके, तो कम से कम 4 आदमी उसी जैसे, यानी जैसे अगर छोटे कद का तो वो छोटे कद के हों, बाल बड़े थे तो उनके भी बाल बड़े हों, वो दाढ़ी मूछ थी तो उनकी भी दाढ़ी मूछ हो, उसी फिजिकल फीचर्स वाले आदमियों को उसके साथ मिलाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी 1 2 3 4 5 6, और फिर विटनेस को कहा जाएगा कि जी इनमें से कौन था, आप इसको आइडेंटिफाई करें। तो वो आइडेंटिफाई करेगा जी, राइट साइड से सीरियल नंबर 3 was the person who was present at the place of incident during the offense and he was supporting them and he was armed with deadly weapon या जो भी उसके ऊपर allegation है. So this is how the identification parade is made. इसमें हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं, पुलिस रूल्स आप देखिएगा, बहुत सारे वकील हमारे पास ये नहीं पढ़ते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू विश टू बिकम एन क्रिमिनल साइड एडवोकेट, आप क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू मस्ट गो विद द पुलिस रूल्स 1934. उसमें जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये रूल 26 सब रूल 7 एंड रूल 26 सब रूल 32 में है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा लाजमी से. Here comes the provision of bail. Now in criminal procedure code there is no such exclusive definition of bail, but simply we say the release of a person who is formally or legally under arrest and in custody, कि किसी भी आदमी को जो कानूनी तौर पर गिरफ्तार है तो उसको आजाद करना. It means releasing of a person from the custody of police and delivering him into the hands of surety, यानी उससे उसको वहां से निकालकर किसके हाथ में देना, श्योरिटी के हाथ में, जो उसका जमानतदार होगा. यानी जमानत की दरखास्त दाखिल होगी और अगर कोर्ट समझती है कि ये जमानत उसका हक है तो उसको जमानत देगी, और जमानत से मुराद ये कि जो जमानतदार होगा उसके हाथ में उसको ये हैंड ओवर करेगी. और जमानतदार कौन होगा, जो ये जमानत देगा कि ये हर तारीख पर कोर्ट में आने का पाबंद है, मैं इसकी जमानत देता हूँ, ये भाग नहीं जाएगा. अगर ये भाग जाए तो मैं उसके अगेंस्ट में जमानतदार हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है. अगर वो जमानत देती है कि जी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में कोर्ट में जमा कराऊंगा और मैं जमानतदार हूँ, जब वो नहीं आएगा तो I would be held responsible. So bail means release of a person who is formally or legally under arrest in a custody, and such custody be delivered to the person who stands as a surety. And who is surety? Who promised before the court, who make a promise before the court that he would make him to attend the court whenever it is required by the law. So these are the precise definition about bail and surety. Or if you are interested in bail and surety, we can have another detailed lecture with regard to bail and surety. This is very interesting topic. Now we have got two types of bail. One is bail before arrest and other is bail after arrest. Both these topics can be discussed in a single session but separately. Inquiry, pre-trial stage. अभी मैंने आपको कहा था कि जी आपने इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस देखना है. आई होप कि वो आपने देख लिया होगा या आप देखेंगे. रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173. अब ये इंक्वायरी है प्री ट्रायल स्टेज, यानी कोर्ट एफआईआर हुई 154, 160 के नोटिस गए, 161 में स्टेटमेंट्स ली, 164 में जी आपने मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट्स दे दी. उसके बाद एविडेंस कलेक्ट हुई, सर्च वारंट हुआ, इशू हुआ, जो आदमी बेगुनाह थे उनको डिस्चार्ज कर दिया, जो आदमी गुनाहगार थे जिनके खिलाफ एविडेंस था वो कलेक्ट हो गया, रिमांड भी हो गए, एविडेंस भी कलेक्ट हो गई, सर्च भी हो गई, बेल जिनको मिलना था उनको बेल मिल गई. सॉरी, बेल would be filed after the submission of 173 report.
Now the investigation is completed within 15 days, within a stipulated time. The police officer is supposed to submit a report under section 173 CRPC, जिसको हम popularly कहते हैं चालान. बाबा केस चालान हो गया है. The case is being चालान. The report is submitted before the concerned court. Now, what are the essentials when the accused are sent up for trial? Now, the case is चालान, the report is submitted. Now, the role of police comes to an end. यहाँ पर पुलिस का रोल खत्म हो गया. Now it is in between the court and the prosecution and the defense counsel. A police has done his job. अब if the court thinks fit, अगर कोर्ट को लगता है कि जी वाकई ये रिपोर्ट जो पुलिस ने दी है, it is genuine and correct, the court will take the cognizance. Court will take the cognizance. Action लेगी कि ठीक है, we are ready to try this case. Under section 190, the magistrate is empowered to take the cognizance, and under section 193, the session court is empowered to take the cognizance of a session trial. अगर मैजिस्ट्रेट के पास जो रिपोर्ट है उसमें खून है, 3 साल से ऊपर की सजा वाला कोई भी जुर्म है, तो वो रिपोर्ट भेज देगा सेशन जज को, और फिर सेशन जज साहब जो है वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे. अगर वो 3 साल से कम उम्र है तो वो मैजिस्ट्रेट उसी के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 CRPC. And under section 241A CRPC, the documents of the case are to be supplied to the accused party. This is the right of the accused, that he should be given the documents कि जी उसके खिलाफ क्या तहकीकात हुई. अब इस केस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो गुम हो गए, भाग गए. FIR 5 आदमियों के खिलाफ हुई, 3 पकड़े गए, 2 आदमी भाग गए, बाहर के मुल्क चले गए, बलूचिस्तान भाग गए, खैबर पख्तूनख्वा पता नहीं है वेयर दे आर. They become the absconders. तो चालान शीट में उसका नाम कॉलम 2 में लिखा जाता है कि जी these persons are absconders. They are fugitive from law. भगोड़े, ये भाग गए, रूपोश जिसको हम कहते हैं. The court will start proceeding under section 87 and 88, जिसको 87-88 की कार्रवाई कहते हैं कि proclaimed offenders, इश्तिहारी मुल्जिम, भगोड़े. तो अंडर सेक्शन 87 उसको प्रोक्लेम किया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, पूरा प्रोसीजर दिखा गया है उसमें. एंड अंडर सेक्शन 88 उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाएगी, अदरवाइज उसको केस का सामना करने के लिए आना पड़ेगा. अगर वो नहीं आता तो प्रोसीडिंग्स आर टू बी इनिशिएटेड. अब एब्सकॉन्शन का मतलब ये कि कंसीलिंग हिमसेल्फ, यानी अक्यूज्ड पर्सन इज कंसीलिंग हिमसेल्फ इन सच अ मैनर that warrants are not executed. इसको एब्सकॉन्शन कहेंगे कि वारंट उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते, तामीलात नहीं हो पा रही. इस तरीके से वो भाग गया कि जी भाई यहाँ से निकला, वो रूस के किसी छोटे से गांव में बैठा, रूस पुलिस नहीं जा रही और रूस वाले उस पुलिस को अलो भी नहीं करेगा आपको, आप यहाँ पर आके इसको गिरफ्तार करके ले जाए. तो मीन्स कंसीलिंग oneself in a manner that warrant cannot be executed. So these are known as absconders. 87 में उसके प्रोसीजर लिखा है, 88 में उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी. Now every evidence is to be recorded in the absence of an accused person. Every evidence is to be recorded in presence of accused person. But cases in which accused persons are not present before the court and the evidence is to be recorded, this situation is defined in section 512 CRPC. 512 में ये लिखा गया. Because if the court is satisfied that an accused person has absconded and there is no immediate prospect of arresting him, 87, 88 में उसको इश्तिहारी मुजरिम भी कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी, अब भी वो नहीं आ रहा, the case is to be produced, the case is to be tried, केस तो चलेगा ना. तो क्या होगा? Under section 512 में the procedure is provided. The competing court may examine the witness on behalf of prosecution in absence and record their depositions. अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीज हैं, दिल के हैं, नहीं आ सकते, डिलीवरी हो गई, यानी अटेंड नहीं कर सकते कोर्ट. तो मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी.
ड्यूरिंग इंक्वायरी, ठीक है जी। Now the inquiry is completed. Report is submitted by the police under section 173. The court has taken the cognizance under section 190 CRPC in case of a magistrate trial and 193 CRPC in case of a session trial. The offenders, the accused persons who have remained as a fugitive from law, who has remained as absconders, the carwai of section 87 and 88 were taken place. It was conducted by the competent magistrate. They were declared as proclaimed offenders. An order of section 512 was passed by the court that in absence of these accused, the evidence is to be recorded. And during this inquiry, if some of the accused are unable to present to attend the court, the magistrate is empowered to dispense with the personal attendance. उनको इजाजत दे, ठीक है जी, आप नहीं आइएगा फिलहाल. Now here comes the charge. Now what is the charge? Charge is a precise formulation of accusation. Means an accusation made against a person in respect of an offense alleged to have been committed by him. किसी आदमी के ऊपर इल्जाम लगा है स्पेसिफिकली कि जी 22 तारीख को सुबह 6 बजे आपने कुल्हाड़ी लेके ए को कत्ल किया. तो ये प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एक्यूजेशन. तो ये वो एक्यूजेशन किसी मखसूस आदमी के खिलाफ किसी मखसूस जुर्म की लगाई जाए और कोर्ट उसको पूछेगी कि जी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, तो क्या आप इसको कबूल करते हैं? वो कहेगा नहीं, तो चार्ज इज फ्रेम्ड. कोर्ट ऑर्डर करेगी जी लेट द मैटर बी फिक्स्ड फॉर द एविडेंस. और अगर कहेगा कि जी हाँ मैंने किया है, तो वहां पे प्लीड गिल्टी हो जाएगा, यानी एतराफ जुर्म हो गया, तो वहीं पे उसको सजा हो जाएगी. एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप. द चार्ज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिमिनल ट्रायल एंड इट शोज द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल. और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेम इज नॉट रेमेडियल. इसका कोई रेमेडी नहीं है कि अगर बगैर चार्ज के केस चल गया. No, it is a mandatory provision. Charge is to be framed under section 221. तो ये 221 से 240 तक जो भी सेक्शन है, ये सारे सीआरपीसी में चार्ज से मुताबिक. Here comes law of evidence. The charge is framed. The case is ready for the trial. The evidence is to be produced. Now, what are the types of evidence? Now, what do you mean by evidence? It means the statements of persons, parties, documents, everything which is related with the relevant fact. ये सारी एविडेंस में आती है. जो भी उस मुतल्लिक का हादसे से मुतल्लिक कोई कागजी बयान है, कोई शवाहिद हैं, whatever. And after the framing of the charge, the accused, if the accused pleads not guilty, or when the court thinks that evidence should not be procured, prosecution leads its evidence and prosecutes the accused in the court of law. I'm sorry, I've got a call. आपको पता है कि on Sunday, a married man is always on duty. So we were discussing the evidence. So what is evidence? Evidence means the statements, the documents, the related material, everything connected with the offense is treated as an evidence. And prosecution is supposed to lead the evidence. वो उस evidence को चलाएगा ताकि जो इल्जाम लगाए गए वो साबित हो सके. This is the precise definition of evidence. I will post this entire presentation at your group. And now let's go briefly हम इसको discuss करते हैं
काइंड्स ऑफ एविडेंस, एविडेंस किस किस्म के होते हैं जी? एक होता है ओरल एविडेंस जो मुंह ज़बानी, आर्टिकल 70 में लिखा है कानून शहादत में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 71, आर्टिकल 71 जो डॉक्यूमेंट्स में हो। डॉक्यूमेंट्स में फिर दो इकसाम के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट। तो पब्लिक वो होता है जैसे कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सर्टिफाइड कॉपीज हो गई जी, कोई भी सरकारी जो भी ऑर्डर्स हैं ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपके कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपकी जाती मिलके तो वो प्राइवेट हो जाते हैं। आर्टिकल 72 में ये लिखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 59 to 65 एक्सपर्ट टेस्टिमनी, कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो वो एविडेंस आता है। जैसे कोई आर्ट है, साइंस है, कोई सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, कोई मेडिकल का कोई एविडेंस है, तो ये एक्सपर्ट एविडेंस कहलाया जाता है। ये आर्टिकल 59 to 65 डील किए गए कानून शहादत ऑर्डर। प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट व्हिच इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री हो गई, ओरिजिनल खाता हो गया, ओरिजिनल आपके पास जो भी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस जो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज हैं, वो सारी सेकेंडरी में आती हैं। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, उसके ऊपर हम कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा हम प्रिसाइजली डिस्कस करते जा रहे हैं, जो भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आर्टिकल 3 कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस, कौन सा गवाह है जो वो कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए? तो कोई भी ऐसा आदमी जो कोर्ट समझती है कि ये सवाल नहीं समझ सकता जो इससे पूछा जाएगा, ये जवाब नहीं दे सकता जो इससे पूछा जाएगा, या वो बहुत ही छोटी उम्र का है, या वो बहुत ही ज्यादा बड़ी उम्र का है, या उसको कुछ ऐसी बीमारी है कि जिससे उसका दिमाग काम नहीं करता, तो हम कहते हैं मानसिक संतुलन वो नहीं है उसमें, या वो किसी भी उम्र के हिस्से में झूठी गवाही देने के वजह से कोर्ट से सजा याफ्ता हो, तो इन हालात में वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता। बाकी इन अदर केसेस इज द कॉम्पिटेंट विटनेस। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 जो है ये दिस इज अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस। आर्टिकल 17 में जो है ये इस्लामी गवाही का है, ये हम अलग से बेटा पढ़ेंगे इसको, कानून शहादत, ये इसमें आ गई स्लाइड, तुम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 17 and article 3 deals with the competence of the witness. एविडेंस ऑफ डेफ एंड डम, जो वो गूंगा और बहरा है, हालांकि कानून शहादत ऑर्डर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 इट इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड। ओके जी, द रूल ऑफ प्रोप्राइटरी। अब इसका मतलब ये कि अगर किसी चीज का मना नहीं है तो मतलब इसकी इजाजत है। तो डेफ एंड डम के बारे में अगर मना नहीं तो इसका मतलब ये कि उसकी इजाजत है, उसकी गवाही जो है वो काबिल कबूल है। अब एविडेंस किस तरतीब से चलेगा, ये आर्टिकल 130 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर में डिस्कस किया गया है। एंड प्रोसिक्यूशन, वंस ऑल दीज एविडेंसेस आर लेड बाय द प्रोसिक्यूशन, ये पूरे एविडेंस चले गए। अब हमने रिपीट कर रहा हूँ बेटा, FIR हुई, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सेक्शन 160 में नोटिस दिए, 161 में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, 162 में फर्दर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, 164 में मैजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, 172 में डायरीज उसने सारी लिखी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, और अगर कोई बेगुनाह था तो 63 में मैजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया, अगर कोई पुलिस ने समझा बेगुनाह है तो 169 में पुलिस ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो भी मटेरियल कलेक्ट हुआ, सर्च हुआ, वारंट, घर की सर्च हुई, आदमियों की सर्च हुई, जो भी चीज़ें मिली, जो भी मटेरियल कलेक्ट हुआ, उसके बाद चालान शीट पेश की गई, चार्ज फ्रेम किया, चालान पेश किया गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने समझा कि ये अब इसके ऊपर केस चल सकता है, इसके ऊपर इतनी एविडेंस है कि इसको एविडेंस लेकर फिर देखें कि आया ही इज गिल्टी और नॉट। The court has taken the cognizance under section 190 and 193 after the cognizance the charge is framed. When the charge is framed, the evidence is laid. Evidence किस तरह की चलेगी? Oral evidence होगी, documentary evidence होगी, circumstantial evidence होगी, medical evidence होगी, expert evidence होगी, primary evidence, secondary evidence किस तरीके से चलेगी, witness कौन होगा, competency उसकी क्या है, चीफ एग्जामिनेशन जो गवाह आएगा वो चीफ एग्जामिनेशन होगा अंडर सेक्शन 130 अंडर आर्टिकल 133 ऑफ कानून शहादत। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंस काउंसिल उसका क्रॉस करेगा, उसका री एग्जामिनेशन अगर वो करना चाहे तो दोबारा वो करेगा। ये सारी एविडेंस जब चल जाएगी बेटा
तो उसके बाद हम कहेंगे द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज कंप्लीटेड. Precisely, we can say criminal trials, the prosecution evidence has to be brought by the prosecution, which may be challenged by the defense. जो मैंने बताया कि वो क्रॉस करेगा उसको, क्रॉस एग्जामिनेशन. The burden to prove the charge against accused shall be upon prosecution. In inquiries and trials, evidence is generally to be recorded in presence of accused or in presence of his pleader in case where his attendance is dispensed with. Now, in a criminal justice system, the burden to prove the guilt is upon the shoulders of prosecution. जो prosecution है वो prove करेगी कि जी ये इसने गुनाह किया है. Mr. Hans Ali has raised his hand. Yes, Hans. Sir, as you said कि जो burden of proof है, it is upon the prosecution. But I've read that in two conditions it transfers upon the accused person. Yes, it can be transferred upon accused person in a certain case where the plea of defense is taken by the accused under section 340 CRPC, 342 CRPC. अगर वो 340-42 में वो प्ली लेता है कि जी मैं अपने आप को डिफेंस करना चाहता हूँ, ये अब हम आ रहे हैं उसके ऊपर जी, अभी आ रहे हैं. So prosecution evidence is completed. Now relevancy and admissibility of evidence is a separate topic. We will discuss about it later on. The judge has to decide the admissibility of evidence के कौन सी evidence लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए. Judge has the power कि जो भी evidence हो वो relevant हो. ऐसा नहीं हो दूर पर एक किस्से कहानियां कोर्ट में आके सुनानी शुरू हो जाए तो वो कोर्ट उसको एडमिट नहीं करने देगी, उन सवालात को खारिज कर देगी. और कौन से सवालात relevant हैं, relevant facts कौन से हैं, उनको consider करेगी. तो कोर्ट के इख्तियारात हैं. और burden of proof जो है ये prosecution के ऊपर है जिसे हमने बात की. Now standard of burden of proof. अब क्लियरली लिखा गया है कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी एक तिनके जितना भी डाउट ना हो, बिल्कुल 100% प्रूव हो जाए. तो वो स्टैंडर्ड ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू एस्टैब्लिश इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. नाउ द डिफेंस लॉयर्स आर ऑलवेज देयर टू क्रिएट दीज डाउट्स. Whenever these doubts are created, the benefit will go to the accused person. Because in our criminal justice system, the accused is considered as the most favorite child of the court. Because उसके ऊपर इल्जाम है, वो मुल्जिम है, वो ऑलरेडी ट्रायल फेस कर रहा है, तो उसको मासूम समझते हैं जब तक वो मुजरिम नहीं बन जाता. Quality and not quantity is the principle. We have to see the quality. जो एविडेंस उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, क्वांटिटी नहीं कि जी 10 आदमियों ने गवाही दी, नहीं. क्वालिटी होनी चाहिए. आई विटनेस है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, रियल हैं, जो आई विटनेसेस ने बयान दिए वो मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ कोरोबोरेट हो गए, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो हालात व वाक़यात की जो गवाही है वो भी उसके साथ मिल गई. तो एक ही विटनेस बहुत है, 2 विटनेस बहुत हैं, 3 बहुत हैं, ये नहीं कि 10 हो, 15 हो, 20 हो. तो वी विल ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस. एक और ये सेक्शन है, ये लाजमी याद रखिएगा कि अंडर सेक्शन 249A एंड 265K. अंडर सेक्शन 249A द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड एंड अंडर सेक्शन 265K द सेशन जज इज एम्पावर्ड कि वो किसी भी स्टेज पे अक्यूज्ड को रिहा कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि चार्ज ग्राउंडलेस है और इस मुल्जिम के ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं होगा और इसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं है. तो वो 249A के तहत मैजिस्ट्रेट को इख्तियारात हैं और 265K के तहत सेशन जज को इख्तियारात है. वो किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन वो अलो करके इस पावर को इस्तेमाल करके उसको रिहा कर देंगे, केस खत्म हो जाएगा. दीज आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट. लेकिन उसका मेन ये है कि the charge is groundless and there is no probability of the accused being convicted of any offense. ये probability ना हो, ये नहीं क्लियर हो कि इसमें इसको सजा आएगी नहीं, तो वहां पे ये इस पावर को इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनको आज़ाद कर सकते हैं, रिहा कर सकते हैं. अब इसका आइडिया क्या है कि जो क्रिमिनल ट्रायल है इट्स रिगोरस, बहुत यानी एक अजाब होता है. तो उस अजाब से इसको जान छुड़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
कि प्रोसिक्यूशन वैसे सक्सीड नहीं होगी अपने केस में, तो हमने इसको रिहा कर दिया, आजाद कर दिया. Now here comes the question of Mr. Hans. Section 342 provides that for the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may, at any stage of any inquiry or trial, without previously warning the accused, put such questions to him as the court consider necessary, and shall, for the purpose of aforesaid, question him generally on the case after the witness for the prosecutions have been examined him and before he is called on for his defense. ये जब एविडेंस खत्म हो जाएगी तो कोर्ट 342 के तहत मुलजिम से पूछेगी कि ये इन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है, अब आपको इसके ऊपर कोई एतराज है या नहीं है. अगर वो कहता है वो मुझे कोई एतराज नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे दोनों वकला के. अगर वो कहता है कि जी मुझे एतराज है, मैं अपनी सफाई में गवाही पेश करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम prosecution to the defense. अब defense has to prove his case. तो नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम ये नहीं करते कि हम डिफेंस प्ली लें, हम डिफेंस प्ली नहीं लेते ताकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहे. अब ये 342 की कार्रवाई के बाद फाइनल आर्गुमेंट्स. देयर इज नो एक्सक्लूसिव प्रोविजन ऑफ लॉ कि जिसमें लिखा गया हो कि जी फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे, बट दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज द कस्टम कि कोर्ट में जब दोनों तरफ से गवाही खत्म हो जाती है तो दोनों तरफ के फरीकैन वकला जो है आके आपस में तकरीर करते हैं और उसके ऊपर जज जो है, कोर्ट जो है, अपनी फाइनल फाइंडिंग्स देते हैं. सो दीज आर माय हम्बल सबमिशंस फॉर टुडेज लेक्चर. इसमें और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं. अच्छा, समरी ट्रायल्स एक देखें. वो जो माइनर ऑफेंसेस हैं जिनमें छोटी छोटी सजाएं हैं, छोटा छोटा जुर्माना है, सेक्शन 260 में 261 में ये दिए गए हैं और पीपीसी में इनके सेक्शन दिए गए, जिनके ऊपर एविडेंस नहीं चल सकती, उनमें एविडेंस की जरूरत नहीं होती, उनमें सिर्फ उनके डेटा वगैरह लेके फिर आपके उनके ऊपर फाइन लेके, इनको समरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं, जो भी समरी ट्रायल ये शेड्यूल में मेंशन है. So that was all for today. We are going to take a break, and after break, if few people are energized, अगर आप और ज़्यादा इसमें कुछ interested हैं, तो हम इसको और भी discuss करेंगे. Otherwise, the basic ingredients, the essentials of a criminal trial are discussed today. If you have got any question in order to satisfy your query with regard to criminal trial, you are allowed to ask. You can submit your questions, and at the end of this recording, I will share this recording in your WhatsApp group. And at the end of the session, I will also share my presentation with you on the WhatsApp group. And if you have any question, आप पूछ सकते हैं, और जो SMS में आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसकी तरफ हम जाते हैं. I am stopping the recording of this session. We have got so many questions here. I will reply you inshallah after the break. Let's take a break.